और स्वागत हो रहा है यहाँ पर हमारे और एक बिल्कुल बेहतरीन स्कोरर विराज तेंदुलकर जो दिखाई देते हुए। विराज, आपका बहुत बहुत स्वागत। कमेंट्री बॉक्स में से आइए प्लीज, विराज तेंदुलकर। और आपके हाथों, आपसे हाथों मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। मैन ऑफ द मैच नवदास, नया मुकाबला मैदान पर। एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते आइए हरीश सर के साथ। Round of this fourth day in fact, because the 3 days were played in the last week, and this is the fourth, and we will be seeing all eight in fact quarterfinalists today, and tomorrow there will be quarterfinals and semi-finals will be played of this 15th editions of All Goa Worldwide Tennis Ball Cricket Tournament organized by MCC. And here it is MCC versus Pongirwar boys, who have won their first encounter. In comes welcome Viraj Tendulkar, who is already given man of the match prize, and here comes Sanju and Ganesh. Ganesh to bowl the first ball. Oh, this is in the air, but very nicely played. Can he get a boundary? Yes, he does. It was in the slot, and Sanju is a very strong man. No chance for any fielder to cut that off. Here for MCC, one of the best all-rounders of not only Kulcharam but also of Goa. Sanju asking for a wide umpire says it was well within the line. Sanju is very good on the offside and also on the leg side. First boundary of the very first ball will give him some confidence. Good start for him and his team. This is once again shot. This is out. What a catch! I guess it was planned because Sanju is very strong. He likes to play a shot on the square leg region. That is exactly where Ganesh had kept his man. And Sanju, if at all it's the strength, Ganesh has converted into his weakness. A very, very big wicket here for Pongirwar boys. Jecho. So first wicket down, Sanju back in the pavilion. Good start here by Ganesh. In comes Suraj Parab. Oh, that was full toss. He missed the full toss. Lucky there, Ganesh. Otherwise, this could have been six. Because one thing I can tell you, if anyone is there who can swing the bat with higher speed, is none other than Suraj Parab. Very nicely bowled. Wonderful bowling here. Great start from Ganesh. Not only getting rid of Sanju, but also bowling in the right areas, getting his wicket and also bowling dot balls. A good match here between MCC and Pongirwar boys. Oh, lovely bowling. Classic bowling here. Mixing it up, bowling in the good length areas, bowling those slow ones, and a great start for Pongirwar boys in this match. After completion of 1, the score is 5 for the loss of 1.
fielders inside inner ring on the offside, and one at a short fine leg. In comes Deep. Swinging it hard, swinging wild. And Deep and Suraj are very good friends, close friends, although they are falling in a different ward. And now it's an opportunity for Deep here. Everyone knows the caliber of Suraj Parab. Deep is also a no mug with the ball. He's a fantastic bowler as well. So now it's his opportunity to showcase against Suraj Parab. How good a batsman. Oh, chance of a catch. Adit Naik takes a good catch and Deep strikes. So Suraj Parab also goes back. A friend getting rid of a friend. And this match is turning out to be an interesting one. Pengirwar boys on high at the moment. The other comes in. In comes Sunil Sawant, the Kakora Express. One more good all-rounder. But Bablu is still there. Bablu has not faced a single delivery and he'll be facing first time. This is played nicely, Adi. And gives a 6. That could have been taken actually if he was slightly back. Otherwise, 6 runs given here. Bablu striking a 6 at the right time. A chance given here to Bablu. Can he make the most of it? Deep will not be happy. Yes, absolutely right. Deep won't be happy because he thought that maybe it was a clean chance. Very nicely bowled, right in a block hole. Very nicely played. In fact, Bablu wants to go for the second. Sujan going in and quick comes the throw. But Sunil Sawant is much quicker than that throw from Sujan. So we'll get a double. Bablu will be on strike with that 2. Score moves on to 13. Very intense match. Interesting going to be the third and the fourth bowler. We know that Ganesh and Deep are very good bowlers. So they have bowled decently enough here in this match so far. Bablu is cheeky as smart. Oh! Once again, Adit misfielding. Adit should have been much better understanding. You need to back up. Deep taking his chances was absolutely correct because you need to take chances against Sunil Sawant and Bablu. If you get their wickets, it will put more pressure on MCC. Good moment here from Bablu. He's playing nicely, very sensibly here at this stage. Once again, straight down the ground. Should be only a single. Sunil Sawant going for the second run. Once again, poor piece of fielding here from Adit Naik. Is misfielded quite in this match. And once again, 2 runs. So I guess 12 runs have come of this over. Basically because of that catch dropped and also some misfields here and there. After completion of 2 overs, the score is 17. The head of the bowler. So Sunil Sawant is also getting into the act with the partnership of Bablu.
with this 4-run score moves on to 21, moving towards a very respectable total now. MCC once again is going for the switch hit. This time Javed bowls in proper area, so right channel. Sunny Sawant also is a good switch hitter, but more often than not I have seen him missing than connecting. Although he is very good on the leg side, he can play straight as well, as you have seen the previous shot that he has played straight on the ground. This is in the air. Who is going to take? Siddesh Lapkar. Oh, drops the catch. Catch is being dropped here by Pongirwar boys. This will definitely hurt them. You cannot drop catches of Bablu. You cannot drop catches of Sunil Sawant. You have to take all your chances. This was not a difficult catch at all. This is what you get. This is what you get when you drop catches. Javed Ali balls short and Bablu takes full toll of that. Again short. Once again Bablu scores at 6. He's bowling way too short here. Short ball will not hurt Bablu at all. He has faced much more quicker bowlers than you, Javed Ali. Bablu is playing a stunning innings as a captain of MCC. Overs the score is 36. Aniket, here comes Aniket against Sunil Sawant. This is very nicely played. Can Deep take this catch? And Deep also drops a catch. This is the third catch that has been dropped here by Pongirwar boys. And one more single taken. Aniket was a man of short stretches, a slight little bit more bounce. He cannot stop that double run. No backing was there from the fielders. Score moves on to 38. This time it should be down the leg side. Wide signal by umpire Sachin Desai. So field position change. Javed Ali goes back to the short cover. Siddesh Lapkar in his usual position of keeper. This is in the air. This was a tossed up delivery. Deep takes it this time. Second time unlucky here. Sunil Sawant, and finally Deep takes a good catch. It was a tossed up off spinner here from Aniket Sawadikar, and that has worked wonders here for the bowling side. This is very good bowling here from Aniket. So 3 balls still remaining in this over. Can Bablu, who has hit the most sixes and most runs for this team, once again bowls slower straight in the hands. Aditya doesn't drop. So once again an off-cutter slower ball that has been bowled by Aniket has worked. This has been the go-to delivery for this bowler Aniket in this tournament so far.
with his attire. I remember Razor Raymond. Once again, can it be one more catch? This time it falls in no man's land, and Adit Naik and Javed Ali stops that. So once again, these lollipop balls are not being played very well here by the batsman of MCC. Score moves on to 41. Last ball. Lovely piece of bowling here from Aniket, and that's it. So not a big target, 42 runs required, but bowling is also quite strong of MCC. If the catches were being taken by all the fielders, then this target would have been less than 30. But still the match is on. 42 is the target, and Pungiral boys have got enough batting to chase these 42 runs in 4 overs. So see the run chase in a short while. I will hand over the mic to Ashok Naik sir. And I will see what are the changes done by Sagar Gosai very closely in his attire. बॉक्स में 42 का टारगेट है, कहीं ना कहीं फील्डिंग ने साथ नहीं दिया बिल्कुल, जो कि मौके छोड़े। 26 रन शानदार बल्लेबाजी संदीप की। और आने वाला अगला मैच होगा जो शेल्डन ब्लास्टर्स और एनडी क्रिकेट टीम, दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए संपर्क करें अगले मैच के लिए। शेल्डन ब्लास्टर और एनडी क्रिकेट टीम, चलिए दोनों टीम कैप्टन जल्द से जल्द टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। बॉलिंग मार्क पर पहला ओवर लेकर सनील सावंत दिखाई देते हुए कमेंट्री बॉक्स की ओर से। 42 का टारगेट है, 10 रन के साथ लगभग 4 ओवर का अगर बात की जाए मुकाबले के, तो 10 रन के साथ से जो कि बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का, और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आदित्य और आदित्य के साथ साइश। दस गेंदों का सामना, 26 रन बनाए, 3 छक्के लगाए संदीप ने। एक शानदार बल्लेबाजी, शानदार पारी, और देखना होगा कि गेंदबाजी और सामने बल्लेबाजी किस तरह से होती है। दूसरी इनिंग की शुरुआत, पहला ओवर और पहले ओवर की पहली गेंद। इस बार पुल किया गेंद को बड़ी खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, जब तक साथ दे रहे थे साथी फील्डर। अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, सागर जो कि डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए, और रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर। पहले बल्लेबाजी की एमसीसी क्रिकेट टीम ने 41 रन बनाए, और अब पुंगरवाल क्रिकेट टीम जो बल्लेबाजी, ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच, इस बार फील्डर मौजूद गेंद के नीचे, और इसी के साथ पहली कामयाबी मिलती हुई एमसीसी क्रिकेट टीम को। डीजे
इंडी क्रिकेट टीम, दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए संपर्क करें। नए बल्लेबाज मैदान पर। सफलता हासिल करते हुए सनील सावंत अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज उनके सामने उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए एक अच्छा टोटल है। एमसीसी क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करके 41-42 का टारगेट। और इसी बीच अगली गेंद, अच्छी गेंद, इस बार अप स्टंप पर बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, लेकिन जैसे देखा गेंद की लंबाई को देखा और गेंद को छोड़ा विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया कवर के साथ, मिड ऑफ के साथ। एक बार फिर से गेंदबाज सनील सावंत धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर। पहला विकेट, आदित्य आउट होकर वापस। और उनके जाने के बाद जो कि सुजन नए बल्लेबाज आ चुके मैदान पर साइज का साथ देने के लिए। स्कोर 2 रन 1 विकेट पर। अपटम पर तेज गेंद, अपटम से बाहर, थोड़ी सी गति की कोशिश में थे सनील, अपटम पर लाइन पर भटके, वाइड बॉल का इशारा। एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ स्कोर में और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 3 पर। 3 रन स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट पर। टारगेट 42 का 42 का मैच को जीतने के लिए। और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज साइज सामना करते हुए। अच्छी गेंद, इस बार ऑफ ब्रेक अंदर आती हुई बाहर से, इस बार खेला गेंद को बैकफुट पर जाकर डिले हाथों से कवर पॉइंट पर फील्डर। और जब तक गेंद को फील्ड करते, बहुत ही शानदार बैकअप, 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। बहुत अच्छी फील्डिंग, बैकअप बहुत बढ़िया था कल्पेश। तो टॉस हो चुका है अगले मैच का। फील्डिंग कर रही है शेल्डन ब्लास्टर क्रिकेट टीम। अगले मैच में टॉस जीता और पहले फील्डिंग। लंबे रनअप के साथ कमेंट्री बॉक्स की ओर से एक बार फिर से सनील सावंत। छोटी गेंद, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, गेंद हवा में, शॉर्ट मिड विकेट पर, फील्डर गेंद के नीचे। और इसी के साथ दूसरी विकेट जो कि वापस निकलते हुई टीम की। चार रन 2 विकेट पर। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, गणेश। बड़ा शॉट, इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर। और देखने होगा गेंद निकलती हुई डीप मिड विकेट से मारेका से बाहर। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। मैन ऑफ द मैच सूरज परब गेंदबाजी के मोर्चे पर। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, पावर प्ले और 8 रन स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट पर। टारगेट 42 रनों का मैच को जीतने के लिए। और दूसरे ओवर की शुरुआत सूरज परब अपने फील्डिंग को सजा रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। मैदान पर 2 बल्लेबाज साइश और साइश के साथ गणेश। 8 रन 2 विकेट पर पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद। सूरज परब राइट आर्म ओवर द विकेट। लोअर फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप पर, थोड़ी सी ओवर पिच भी गेंद।
बल्ला घुमाया लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं। ऑफसाइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर, एक डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। सूरज परब और फिर से ऑफ स्टंप पर ओवर पिच गेंद, खड़े खड़े खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले से दूर चली गई विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर के साथ शॉर्ट हेडबैंड पर, एक कवर पॉइंट पर, एक शॉर्ट कवर पर, ऑन साइड पर एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। यह फील्डिंग की जमावट मैदान पर एमसीसी क्रिकेट टीम जो पहले 41 रन और 42 का टारगेट मैच को जीतने के लिए। फुल टॉस गेंद लेकिन टाइमिंग उतना अच्छा नहीं रहा। देखना होगा संजय नाइक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर उस कैच को दबोचते हुए और तीसरी कामयाबी मिलती हुई एमसीसी क्रिकेट टीम को। अनिकेत नए बल्लेबाज मैदान पर सफलता हासिल करते हुए सूरज परब अपने बॉलिंग मार्ग पर खेल जारी दूसरे ओवर का। और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामना करते हुए साइश एक चौका लगा चुके खुद के व्यक्तिगत 5 रन पर, और नए बल्लेबाज अनिकेत जो नॉन स्ट्राइक रेंज पर। सूरज परब राइट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए। ऑफ स्टंप पर एक पुलर लेन की गेंद अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद निकले विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही अच्छी ओवर चलता हुआ एमसीसी क्रिकेट टीम की ओर से सूरज परब। पहला ओवर जो कि सनील सावंत जो गेंदबाजी में, उनके बाद अब जबकि दूसरा ओवर चलता हुआ और सूरज परब राइट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। फुल टॉस गेंद लेकिन वो फायदा नहीं मिला बल्लेबाज को। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते, बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। रन गति को बढ़ाना पड़ेगा, 42 का टारगेट है। स्कोर हो चुका है टोटल 10 रन 3 विकेट पर। आने वाले 13 गेंदों का खेल अभी भी बाकी मैच का, और जीतने के लिए अभी भी चाहिए 32 रन। अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर, अच्छी लाइन पर बिल्कुल जो कि गेंदबाजी की सूरज पर अपने। तो खेल समाप्त होता हुआ इसी के साथ 2 ओवर का दूसरे ओवर की समाप्ति, और 2 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है टोटल 10 रन 3 विकेट पर। आने वाले 2 ओवर 12 गेंदों का खेल बाकी, और 12 गेंदों में मैच को जीतने के लिए अभी भी चाहिए 32 रन। परिवर्तन संजय नाइक कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी के मोर्चे पर। बड़ा शॉट ओवर पिच गेंद इस बार डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद निकलती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। किया था, कट करना चाहते थे ऑफसाइड पर, अगर सही संपर्क गैप में निकलते तो रन भी बन सकते थे, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर रुका हुआ 16 पर 3 विकेट पर, 16 लॉस ऑफ 3 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, तीसरा ओवर मैच का जलता हुआ, और संजय ने गेंदबाजी करते हुए थोड़ा सा फील्डिंग में ऑफसाइड पर परिवर्तन मैदान पर। इस बार ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा दूर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। अतिरिक्त रन के साथ से 1 रन बढ़ गया स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ा 17 टोटल, 17 लॉस ऑफ 3 विकेट। संजय नाइक गेंदबाजी करते हुए खुद का पहला, टीम का तीसरा ओवर।
ऑफ स्टंप पर गेंद, इस बार फिर से थोड़ा सा बल्ले से जो कि दूर से खेलने की कोशिश की थी, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। 25 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए और अभी भी खेल बाकी, टोटल जो कि 9 गेंदों का। बिल्कुल उसी लाइन पर फिर से गेंद, ये गेंद थोड़ी सी टिप्पक आने के बाद नीचे रही, बल्ला ऊपर से, गेंद नीचे से विकेट कीपर के हाथों में। कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं। पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद संजय नाइक वापस आते हुए अपने लाइन पर गेंदबाजी में एक बार फिर से 10-12 कदमों के रनअप से। ये गेंद पटकी हुई गेंद, इस बार उछाल मिली गेंद को, ऑफ स्टंप पर खेलना चाहते थे, फिर से चूके गेंद के बारे में पूरी तरह से गेंद, और एक जो कि बिंदी गेंद विकेट कीपर के हाथों में। गेंदें निकलती जा रही है इस तरह से तो रन रेट बढ़ता जा रहा है स्कोर बोर्ड पर। यह गेंद फिर से ऑफ स्टंप पर शॉर्ट पिच गेंद, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। तो पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद एक वाइड बॉल के साथ 7 रन बने इस ओवर में। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ और 3 ओवर समाप्ति के बाद 17 लॉस ऑफ 3 विकेट। आखिरी ओवर 6 गेंदे और अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए टोटल 25 रन। आखिरी ओवर 25 रन। ऑप्टम से दूर गेंद, गंदार जो कि गेंदबाजी में ऑप्टम से शायद तेज गेंद करने की कोशिश, लेकिन अपने लाइन पर बैठ के ऑप्टम से दूर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। तो अंतिम ओवर अभी भी बाकी और अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए 24 रन, 24 रन्स। गंदार गेंदबाजी करते हुए बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे इस मैच को जीतने के लिए। इस बार ऑफ स्टंप पर अच्छी गेंद, डॉट गेंद, पहली गेंद ऑफ स्टंप से दूर, ये अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर छोड़ा था अंपायर की ओर, जरूर जो कि थोड़ी सी नजर, लेकिन अच्छी गेंद थी अंपायर का जो कि फैसला। 5 गेंदों का खेल अभी भी बाकी मैच का और जीतने के लिए 24 रन। 4 बड़े शॉट, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, फिर से एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। तो अभी भी 4 गेंदों का खेल बाकी है। 4 बड़े शॉट, 5 गेंदों का माफ कीजिए, और अब भी मैच शायद अभी भी बन सकता है मैदान पर अगर बड़े शॉट लगे 4 तो, लेकिन देखना होगा अगर 1-2 गेंद डॉट गेंद निकाल में सफल है तो मैच भी बन जाएगा। फुल टॉस गेंद, बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और इसी के साथ सूरज पर अब डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कैच को पकड़ते हुए विकेट नंबर 14 वापस डीजे। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, दीप्तेश। गद्दार सफलता हासिल करते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर सामने देखिए अनिकेत घूमकर मारना चाहते थे, शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। आखिरी ओवर का खेल जारी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, 26 रन बनाए संदीप ने, 3 छक्के लगाए 10 गेंदों में, 26 रन, एक शानदार बल्लेबाजी की और उसके बदौलत 41 रन, 42 का टारगेट और गंदार गेंदबाजी करते हुए इस अंतिम ओवर में फिर से उसी लाइन पर, उसी तरह से अंदाज में, उसी तरह से कोशिश बल्लेबाज की, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। और एक बार फिर से स्ट्राइक एंड पर अनिकेत जो सामना करते हुए गंदार की गेंदबाजी का।
स्कोर वहीं पर रुका हुआ, 19 लॉस ऑफ 4 विकेट, 19 रन 4 विकेट पर, 23 रन अभी भी चाहिए, 23 रन्स। इस बार स्लोअर वन, धीमे पेकी गेंद, रन के लिए निकले दीप्तेश, और जब तक गेंद को फील्ड करते, विकेट कीपर थ्रो करते, तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बस मुकाबले समाप्ति की ओर एमसीसी क्रिकेट टीम लगभग मैच में पगड़ा भारी दिखाई देता हुआ, जीत की ओर लगभग दिखाई देती हुई, और देखना होगा क्या होता है, जो कि दीप्तेश स्ट्राइक एंड पर। छोटी गेंद इस बार हुक किया बड़े खूबसूरती के साथ, लेकिन फाइन लेग पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं, कोई रन का सवाल नहीं। तो इसी के साथ ओवर जो कि चौथा जो गंदार गेंदबाजी कर रहे थे वो समाप्त होता हुआ, और इसी के साथ मुकाबला भी समाप्त होता हुआ, जो मैच को जीतती हुई एमसीसी क्रिकेट टीम। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच संदीप, जिन्होंने 10 गेंदों में 26 रन बनाए, 3 बढ़िया छक्के लगाए, वो मैन ऑफ द मैच संदीप इस मैच का। फिलहाल एक बार फिर से जो कि अगले मैच के साथ जुड़ जाते हैं कमेंट्री बॉक्स में, आइए सर सागर गोसावी के साथ। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। Requesting captain of Purush Maru boys and Rajbagh kindly come for toss as you are playing the